پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات پر سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ عدالت عظمیٰ نے انتخابات از خود نوٹس میں 90 روز میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا۔ فیصلہ 3-2 کے تناسب سے سنایا گیا۔ اسلام آباد سے سہریش خان کی رپورٹ۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن میں تاخیر پر از خود نوٹس کا فیصلہ سنایا۔ فیصلہ 2-3 کے تناسب سے سنایا گیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ انتخابات 90 روز میں الیکشن کروائے جائیں۔ گورنر اسمبلی تحلیل کرے تو 90 دن میں انتخابات لازمی ہے۔ کے پی میں انتخابات کی تاریخ دینا گورنر کی ذمہ داری ہے۔ گورنر اپنا آئینی کردار فوری ادا کرنے کے پابند ہیں۔ گورنر فیصلہ نہ کرے تو صدر تاریخ دے سکتا ہے۔ عدالت نے کے پی حد تک صدر کا حکم کالعدم قرار دے دیا اور کہا گورنر کے پی فوری طور پر انتخابات کی تاریخ دیں۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57 اور 58 کو مد نظر رکھ کر تاریخ دی جائے۔ عدالت نے کہا کہ پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دینا صدر کی ذمہ داری ہے۔ گورنر کا حکم پنجاب کی حد تک آئینی ہے۔ صدر الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے فوری تاریخ کا اعلان کریں۔ عدالت نے کہا عدالت نے سامنے 3 سوال تھے۔ پہلا سوال تھا کہ انتخابات کی تاریخ کون دے گا، دوسرا سوال کہ آئینی کردار کون اور کب ادا کرے گا، تیسرا سوال کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا انتخابات میں کیا کردار ہوگا۔ تحریری فیصلے میں عدالت نے کہا تمام وفاقی اور صوبائی ادارے الیکشن کمیشن کی معاونت کریں۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ صدر نے 9 اپریل کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا۔ 9 اپریل کو انتخابات ممکن نہیں تو مشاورت کے بعد پنجاب میں تاریخ تبدیل کی جا سکتی ہے۔ صوبوں میں وقت پر انتخابات کرانا بھی وفاق کی آئینی ذمہ داری ہے۔ آئین کے مطابق تمام ریاستی ادارے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی مدد کے پابند ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس منصور علی شاہ نے اختلافی نوٹ میں کہا جسٹس ریا آفریدی جسٹس اطمین اللہ کے 23 فروری کے نوٹ سے متفق ہیں۔ پنجاب اور کے پی کے انتخابات از خود نوٹس کیس اور پی ٹی آئی کی آئینی درخواستیں ناقابل سماعت ہیں۔ از خود نوٹس کیس اور پی ٹی آئی کی آئینی درخواستیں مسترد کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم، جیل بھرو تحریک معطل عمران خان کا کارکنوں کو تیار رہنے کا پیغام۔ ہفتے سے انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ویڈیو لنک خطاب میں وفاقی وزیر قانون کے بیانات کی مذمت کرتے ہوئے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی ایسی فضا بنی ہوئی ہے کہ 90 دن میں انتخابات نہ ہوں۔ نون لیگ ہمیشہ انصاف سے بھاگتی ہے، قوم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج کے فیصلے کے بعد جو ہم نے جیل بھرو تحریک تھی اس کو ہم نے اب ختم کیا۔ لا منسٹر نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے شرمناک ہے۔ پھر سے جوڈیشری کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، جبکہ 5 ممبر بینچ نے سب نے ایک ہی چیز کہی کہ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتا، 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے۔ یہ آزاد عدلیہ کو کبھی نہیں چاہیں گے کیونکہ یہ سارے اداروں کو کنٹرول کر کے ہی غیر قانونی چیز کر سکتے ہیں۔ جب تک ججز ان کے کنٹرول میں نہ ہوں، اور یہ جب ایک جج کو ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر کو 3 سال نہیں 5 سال سزا ملنی چاہیے، یہ اس طرح کے ججز چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، لیکن ایک فضا ملک میں بنی ہوئی ہے کہ پھر بھی شاید 90 دن میں الیکشن نہ ہو۔ اس سے کیا چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اتنا نقصان پہنچایا ہے اس مافیا نے کہ لوگوں کو اعتماد ہی اٹھ گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک میں جشن منایا جا رہا ہے۔ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ، بھنگڑے بھی ڈالے جا رہے ہیں۔ سید وقار حسین وہاں پر موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی وقار، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی رہائش گاہ زمان پارک میں موجود ہوں اور کارکنوں کی بڑی تعداد یہاں زمان پارک میں موجود ہے۔ میرے پیچھے اگر کیمرے مین آپ کو دکھا سکے تو یہاں باقاعدہ طور پر کرسیاں وغیرہ لگائی گئی ہیں، وہی ماحول ہے۔ ہر طرف جو بینر ہیں وہ علیحدہ کیا گیا ہے اور وقت دینے کے ساتھ ساتھ کارکنان کی بڑی تعداد جو سی ہے وہاں زمان پارک پہنچ رہی ہے۔ اس کے علاوہ زمان پارک میں آتش بازی بھی کی جا رہی ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور خوب جشن منایا جا رہا ہے۔ یہاں کارکنوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب الیکشن ہوں گے اور پاکستان تحریک انصاف بھاری اکثریت سے کام ہو کر ملک میں انصاف کا بول بالا کرے گی، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں ترقیاتی کام کروائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو سی ہے
वो मरकज़ में भी भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। और पाकिस्तान तरीके मैं आपको दोबारा दिखाता चलूँ कि यहाँ बकायदा तौर पर बड़े पैमाने पर यहाँ आतिशबाजी की जा रही है। इसके अलावा कारकुनान जो से हैं वो हमें बड़े ही पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के साथ हैं, उनके शाना बिछाना खड़े हैं। और तमाम आवाम जो सी है वो इस वक्त महंगाई से तंग आ चुकी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा भारी अक्सरियत से कामयाब होकर आवाम को महंगाई से निजात दिलाएगी। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान है वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनकर आवाम को निजात दिलाएंगे महंगाई से। इसके अलावा मुल्क में इंसाफ का बोलबाला किया जाएगा। बहुत शुक्रिया वकार हुसैन। विफाक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिए। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर ताड़ कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात के हवाले से आज खुद नोटिस केस के फैसले पर नजरसानी की जरूरत नहीं, न ही ये तशरीह तलब मामला है। हमारे मुताबिक ये पिटीशन 3 के मुकाबले में 4 से मुस्तरद हो गई है। रिव्यू वाली बात नहीं है। फैसला जब बहुत वाजे हो और उसमें इबहाम ना हो, ये कोई हार जीत वाला वैसे भी केस नहीं था कि किसी की अहलियत और नाअहलियत का केस है, किसी की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन डिस्कस हो रही है। ये एक आईनी नुक्ता आया और उस आईनी नुक्ते की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर पहले बहस छिड़ी और उस बहस के नतीजे में 2 बातें सामने आई कि जिन 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया था इस मामले को रिफर करते हुए, उनके ऊपर एतराज उठाया गया कुछ जमातों के वकला की तरफ से और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जो वकला तंजीम है। उन 2 जज साहबान ने अल्टीमेटली रज़ाकाराना तौर पे अपने आप को बेंच से अलग कर लिया, रिक्यूज कर लिया। मैं समझता हूं कि उनका ये फैसला साहिब था, क्योंकि कहते हैं कि इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए और उसकी कोई बैकग्राउंड भी और हिस्ट्री भी थी उन 2 जज साहबान के हवाले से। इलेक्शन कमीशन पंजाब में खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए सदर मुमलिकत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से मुशावरत करेगा। खत लिखने से मुतालिक खत्मी फैसला कल सुबह के इजलास में होगा। सजाद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज में इलेक्शन कराने का हुक्म, इलेक्शन कमीशन मुतहरिक। सराय के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत अहम बैठक हुई। लॉ विंग ने सुप्रीम कोर्ट फैसले पर ब्रीफिंग दी। दोनों सूबों में इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत की गई। फैसला हुआ कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और गवर्नर केपीके के साथ दोबारा मुशावरत की जाएगी। ज़राए का कहना है कि अहम तरीन मामले पर मजीद मुशावरत के लिए इलेक्शन कमीशन में जुमेरात की सुबह फिर इजलास होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चेयरमैन पीटीआई ने जेल भरो तहरीक मुअत्तल करने और इंतखाबी मुहिम के आगाज का ऐलान कर दिया। इमरान खान कहते हैं फैसला पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी पर तस्दीक की एक मोहर है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आइन की फतह करार दे दिया। अहम फैसले के फौरी बाद चेयरमैन इमरान खान ने जेल भरो तहरीक मुअत्तल करने का ऐलान करते हुए कहा कि आइन को बरकरार रखना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी और उन्होंने आज अपने फैसले के जरिए बहादुरी से ये काम किया है। ये पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी की तरीक है। फवाद चौधरी कहते हैं जो फैसला हुआ है ये असल मुत्तफिक का फैसला है। जिन 2 जजेस ने इख्तिलाफ किया है वो इख्तिलाफ ये था कि लाहौर हाईकोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी है कि 90 रोज में इलेक्शन करवाया जाए। जब फैसला आ चुका है तो हमें जरूरत नहीं है। हमारा मौकिफ 5 जजेस ने तस्लीम किया है। जो हमारा मौकिफ है वो तो 5 जजेस ने तस्लीम किया है और ये 5-0 से ये जजमेंट हुई है कि 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होने हैं। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर कहते हैं आइन की बालादस्ती के लिए 90 दिन में इलेक्शन करवाना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत साफ शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इलेक्शन की तैयारी करें। साबिक वज़ीर इत्तलात फारूक हबीब का कहना था कि इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत से हर सूरत मुशावरत का पाबंद है और सदर मुमलिकत पंजाब में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करेंगे जो कि 90 रोज से ज्यादा नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून वालों अब भागना नहीं, मैदान में आओ और मुकाबला करो। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की बालादस्ती कायम करके पूरी कौम के दिल जीत लिए हैं। यास्मीन राशिद कहती हैं इंतखाबात से भागने वाले अवामी एहतसाब के लिए तैयार हो जाएं। आइन को पामाल करने वालों को मुंह खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले से मुल्क में इंसाफ का बोलबाला हुआ है। इम्पोर्टेड हुक्मरान टोले के मुकद्दर में शिकस्त लिखी जा चुकी है। इलेक्शन जल्द करवाने का जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया वो बहुत खुशाइन है। 90 दिन के अंदर अंदर उन्होंने कहा इलेक्शन करा दें। उन्होंने आज आइन की पासदारी रखते हुए आज ये इलेक्शन अनाउंस करवाई है और इंशाल्लाह उम्मीद है
कि अगले 90 दिन जो 45 दिन आज हो चुके हैं, 45 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाएगी। पीटीआई के इत्तेहादी रहनुमा शेख रशीद ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इंतखाबात ही मुल्की मसाइल का वाहिद हल है। इलेक्शन ही मसाइल का हल है। चीफ जस्टिस साहब को पता है कि 10,000 कंटेनर जो हैं कराची में खड़े हैं। जजेस को पता है कि मुल्क में गरीब एड़ियां रगड़ रहा है, कोई समुंदर में मर रहा है, कोई सड़क पे मर रहा है, कोई घर में भूख से मर रहा है। शेख रशीद ने पीडीएम पर तनकीद करते हुए कहा कि मुल्क में डाकू राज कायम है। ये लोग अदालतों से अपने केसेस खत्म कराने आए थे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस केस के फैसले पर हुकूमती इत्तेहाद का कहना है कि फैसले को तस्लीम करते हैं। किसी ने फैसले पर इत्तेफाक किया, कहा कि मामले पर अज़ खुद नोटिस लेना बनता ही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को टेलीफोन किया और सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की। मोहम्मद शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के सरबराहन से भी राब्ता करेंगे और हुकूमती इत्तेहादियों को अदालती फैसले के बाद की हिकमत अमली पर एतमाद में लेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अदालती उज़्मा के फैसले को तस्लीम करते हैं, लेकिन फैसले पर इख्तलाफ भी है। फैसला इख्तलाफ राय से आया है। हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा होने पर इख्तलाफी नोट लिखा गया। वफाकी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो बिल्कुल तस्लीम करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वफाकी हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग है, लेकिन जो फैसला आया है वो उसमें इख्तलाफी राय आया है। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने अपने रद्द अमल में कहा कि सूबाई इंतखाबात बारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून और इंसाफ की बुनियादी तकाज़ों के मुनाफी है। एक ट्वीट में उनका कहना था कि मुतनाज़ा तरीन इंतखाबात बड़े सियासी हादसात और तकसीम की बुनियाद बन सकते हैं, जिसका पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता। वफाकी वजीर खुरम दस्तगीर कहते हैं, हम आइन पर अमल करने के पाबंद हैं। आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, मिनटों में सू मोटो लिया गया, झटपट में फैसला आ गया। 4 जजेस ने कहा कि ये सू मोटो बनता ही नहीं। अक्सरियती जजेस ने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है। लाडला अज़्म मुल्क के लिए खतरा बनता जा रहा है। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के साथ 30 अरब रुपए दरकार। इलेक्शन कमीशन ने वजारत दाखिला और खजाना को खत लिखने का फैसला कर लिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सज्जाद काज़मी से। जी सज्जाद काज़मी, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ने आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तैयारियां जो हैं वो तेज कर दी हैं। दोनों सूबाई असम्बली आम इंतखाबात से मुतल्लिक जो है एक तरफ से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं मुख्तलिफ जो सियासी इंतखाबी निशानात से मुतल्लिक, तो दूसरी तरफ जो वर्क फोर्स और जो फंड्स की फराहमी है उसके लिए भी खतूत लिखने का जो है फैसला कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि वजारत दाखिला को खत लिखा जाएगा कि सिक्योरिटी फराहम की जाए और साथ साथ फाइनेंस डिवीजन को खत लिखा जाएगा कि मजीद फंड दिए जाएं ताकि और दोनों सूबों के जो इंतखाबात हैं वो जो है बर वक्त तरफ कराए जा सकें। और इलेक्शन कमीशन के जराये बताते हैं कि खत लिखकर वजारत खजाना से कहा जाएगा कि 30 अरब फौरी रिलीज किए जाए और साथ साथ इलेक्शन कमीशन को वजारत दाखिला को तकरीबन 1 लाख से जायद की नौकरी देने का कहा जाएगा। ये जो आर्टिकल 220 का सहारा लिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से और उस खाद खतूत में ये रेफरेंस दिया जाएगा कि आर्टिकल 220 के तहत तमाम इदारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाने के हवाले से मावनत के पाबंद हैं। तो उस आर्टिकल 220 का हवाला लेकर ये खत जो है वो दोनों जो वजारतों को हैं लिखे जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद काज़मी अपडेट करने के लिए। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। गलत तफसीलात पर इलेक्शन कमीशन ने 120 दिन के अंदर एक्शन लेना होता है। अगर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया तो फिर बस नहीं लिया। इमरान खान नाअहली केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, टीरान वाइट से मुतल्लिक तमाम रेफरेंसेस का कार्ड बदलाने का हुक्म दे दिया। समात का अहवाल इस रिपोर्ट में। मुबैना बेटी जाहिर न करने का मामला, इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की कि इमरान खान ने बेटी टेरियान जदमोइंद को कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं किया, लिहाजा उन्हें नाअहल किया जाए। इमरान के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। 2 दफा इलेक्शन कमीशन इस मामले का फैसला कर चुका है। अदालत ने इस्तफसार किया कि अगर इमरान खान मेंबर कौमी असम्बली नहीं तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी। मुद्दई के वकील और साबिक जस्टिस हामिद अली शाह ने कहा कि इमरान खान अभी भी मेंबर कौमी
असम्बली हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए, क्या आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने अभी फैसला दिया है, इलेक्शन कमीशन नाअहल नहीं कर सकता, अहलियत देखने का इख्तियार हाई कोर्ट्स और अदालतों का है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, हबीब अकरम केस में सुप्रीम कोर्ट ने बयान हनफी कागजात का हिस्सा बनाया। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जेर किफालत बच्चों की तफसीलात बताना लाजिम थी, मगर बच्चों की तफसीलात बताना तो लाजिम नहीं है ना। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये तफसीलात लाजिम नहीं है, मगर असासों की फहरिस्त में बच्चों के असासों की तफसीलात बताना है। इस एतबार से बिलवास्ता तौर पर बच्चों की तफसीलात लाजिम है। चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि अगर तफसीलात गलत जमा कराई गई हों तो इलेक्शन एक्ट क्या कहता है। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि अगर तफसीलात गलत हों तो ये करप्ट प्रैक्टिस में आएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि गलत तफसीलात पर इलेक्शन कमीशन ने 120 दिन के अंदर एक्शन लेना होता है। अगर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन नहीं लिया तो फिर बस नहीं लिया। अदालत ने वकील दरखास्त गुजार को टेरियन वाइट केस से मुताल्लिक तमाम रेफरेंसेज रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म दे दिया। समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी कर दी गई। केस काबिल समाअत होने पर आइंदा भी दलाइल जारी रखेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तैनाती के खिलाफ केस, सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तैनाती से रोक दिया। अदालत ने मुकदमे के फैसले तक तैनाती पर हुक्म इम्तना भी जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जीबी सुप्रीम कोर्ट अपील कोर्ट में तैनाती जजेस को बजरिया रजिस्ट्रार नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में बेंच ने केस की समाअत की। वफाकी हुकूमत ने जवाब देने के लिए मजीद वक्त मांग लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए। वजीर आला जीबी के वकील मखदूम अली खान ने वक्त मांगने की मुखालफत करते हुए कहा 1 साल से मुकदमा जेरे इल्तवा है, केस अदालत में है, फिर भी जजेस तैनातियां की जा रही हैं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि क्या वजीर आला की एडवाइस जजेस तैनाती में जरूरी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, इस नुक्ते पर तफसीली दलाइल दूंगा। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क दिए, 1-2 हफ्ते तैनातियां ना भी हों तो कुछ नहीं होगा। जजेस 4 संभाल चुके हैं, उन्हें नोटिस देने की कानूनी हैसियत आइंदा समाअत पर तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जीबी सुप्रीम अपील कोर्ट में तैनाती जजेस को बजरिया रजिस्ट्रार नोटिस जारी कर दिया। पाकिस्तान और तुर्किया यकजान 2 कालिब हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के मुसलमानों के ताल्लुकात सदियों पुराने हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं काबीना ने 1 माह की तनख्वाह जलजिला मुतासिरीन को देने का ऐलान किया है। वजीर खजाना ने अपनी जेब से 2 करोड़ का अतिया दिया। मुआशी मुश्किलात के बावजूद बरादर मुल्कों के साथ ताउन जारी रखेंगे। खिलाफत मूवमेंट जब 1920 की दही में चली हिंदुस्तान में, तो रिश्ता वहां से बना नहीं, वहां से मजबूत जरूर हुआ होगा, लेकिन ये इस्लामी जो ताल्लुक है वो तो सदियों पर मुहित है। काबीना ने 1 महीने की तनख्वाह कंट्रीब्यूट की है। हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी ताईं पूरी कोशिश की है और ये कोशिश जारी है कि तुर्क भाइयों और बहनों और शाम के भाइयों और बहनों के लिए जो भी हम इस मुसीबत के वक्त उनके काम आ सकते हैं हम वो कर गुजरें। गो के हमारे जो एक फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, हमारे बहुत मुश्किलात हैं। सूबाई वजीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने पेइंग बस सर्विस के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया है। और अब खवातीन सफर के लिए पिंक बस सर्विस का इंतखाब करेंगी। रिपोर्ट शाहिद एजाज की। न्यू कराची और क्राफ्टन डिफेंस में रहने वाली खवातीन भी पिंक बस सर्विस इस्तेमाल कर सकेंगी, जबकि खवातीन के मुताबिक पिंक बस सर्विस को महफूज और बाइज्जत सफर का रास्ता करार दिया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का कहना है पूरी दुनिया में 10 से 12 ऐसे ममालिक हैं जहां खवातीन के लिए ऐसी मखसूस बस सर्विस चलाई जा रही है, जिसमें से पाकिस्तान भी एक है। हम इन खवातीन के लिए मखसूस बस सर्विस को, पिंक बस सर्विस को जिनके हर जिले में लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और यही हमारा मकसद है, यही लीडरशिप की और पीपुल्स पार्टी की सोच है, जिसने हमेशा खवातीन के लिए, खवातीन को एम्पावरमेंट करने के लिए कोशिश की। इस बस में सिर्फ खवातीन बैठेंगी और आज से ये सारे रूट्स नए ऑपरेट हो जाएंगे। हमारे शहर की खवातीन को, हमारे शहर की माओ बहनों को बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सेफेस्ट तरीके से, इसमें कैमरास भी लगे हुए हैं और आपको ये सब सहूलियतें फराहम होगी। पिंक बस सर्विस की नए रूट्स न्यू कराची से इंडस अस्पताल और सीवीओ क्लिफ्टन से नुमाइश चौरंगी तक सफर करने वाली खवातीन मुस्तफीज हो सकती हैं। शाहिद इजाज, टीवी कराची।
ملک بھر میں 7ویں اور پہلی ڈیجیٹل مردم و خانہ شماری کا آغاز ہو گیا۔ دارالحکومت اسلام آباد میں چیف مردم شماری کمشنر نعیم الظفر نے مردم شماری کا افتتاح کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ 1 ماہ بعد قوم کو مردم شماری کے اعداد و شمار کے نتائج دیے جائیں گے۔ 1,15,000 افراد پر مشتمل عملہ مردم شماری کر رہا ہے۔ سجاد قاسمی کی رپورٹ۔ پاکستان کتنے نفوس پر مشتمل ہے؟ کتنے افراد کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ وسائل کی کس حد تک کمی اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی جا سکتی ہے؟ ملک بھر میں مجموعی طور پر 7ویں جبکہ پہلی ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز ہو گیا۔ 1,15,000 افراد پر مشتمل عملہ گھر گھر جا کر اعداد و شمار کا تعین کر رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پالیسی سازی اور منصوبہ بندی کے لیے خانہ و مردم شماری اہم ہے۔ فیلڈ شمار کنندگان الیکٹرانک ڈیوائسز سے ڈیجیٹل طور پر ڈیٹا جمع کر رہے ہیں۔ اس مردم شماری میں پاکستان کے شہریوں کو خود شماری کی سہولت بھی دی ہے۔ خود شماری پورٹل 3 مارچ 2023 تک دستیاب رہے گا۔ یہ مردم شماری اقتصادی مردم شماری کے لیے فریم ورک فراہم کرے گی۔ ٹیبلٹ خراب ہو سکتا ہے، آپ کا ڈیٹا سنک نہیں ہوتا، آپ کے میپ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتے، آپ کی کوئی سافٹ ویئر کے اندر پرابلم آتی ہے یا آپ کے سافٹ ویئر آپ کے ٹیبلٹ کی مینٹیننس کا ہے، تو اس کے لیے نادرا ہمارا پارٹنر ہے اس میں، اور نادرا نے اپنے الحمدللہ 495 جگہ پہ اپنا سٹاف ہمارے ساتھ ڈپیوٹ کیا ہے۔ ترجمان ادارہ شماریات سرور گوندل کا کہنا تھا کہ 1,21,000 افراد کو پورے پاکستان میں تربیت دی گئی ہے۔ 1,26,000 الیکٹرانک ڈیوائسز اس مردم شماری میں استعمال ہوں گی۔ پورے ملک میں 495 مردم شماری سپورٹ سینٹر بنائے گئے ہیں۔ سافٹ ویئر اور الیکٹرانک ڈیوائسز میں خرابی کے لیے نادرا کی معاونت ہوگی۔ حکام کا بتانا ہے کہ ہر شمار کنندہ کے ساتھ پولیس کا ایک اہلکار اور آرم فورسز کا تعاون حاصل ہوگا۔ پہلے 15 دن ایک بلاک اور اگلے 15 دن میں دوسرا بلاک شمار ہوگا۔ سجاد قاسمی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ یہاں لیں گے ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل میں نئے بلاک کا افتتاح کر دیا اور تعمیراتی کام کے معیار کو سراہا۔ لاہور سے رانا کامران کی رپورٹ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل میں نئے بلاک کا افتتاح کیا اور گرلز ہاسٹل کے مختلف بلاکس کا دورہ بھی کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے ای لائبریری، ڈائننگ ہال، لائبریری اور لانڈری کا معائنہ کیا اور ہاسٹل میں موجود طالبات کے لیے سہولیات کی تعریف کی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے ہاسٹل میں تعمیراتی کام کے معیار کو بھی سراہا اور کہا کہ خواتین ہی اس ملک کو آگے لے کر جا سکتی ہیں۔ ہمیں خواتین کی ضروریات اور تعلیم پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ایک بہترین معاشرے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ صوبائی وزیر اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈاکٹر صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر، سیکرٹری اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن، سیکرٹری اطلاعات وائس چانسلر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی، کمشنر لاہور ڈویژن، CCPO لاہور اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے ساتھ موجود تھے۔ رانا کامران، سچ نیوز، لاہور۔